Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. In the previous class, students, we have completed our chapter A Tree Spirit from your Communicate in English textbook. And we have also done all the exercises in the live class, right? So today we are going to move ahead with a lovely poem named Storyboard, and it is written by the poet Bobby Katz. So students, please open your textbook, Communicate in English, page number 76. And I request you all to recite this poem along with me. Okay, so let's start it. It is time to read a story, so climb aboard with me, and we can sail a storyboat across a magic sea. We can visit jungles or rub noses with a bear. We can visit any place and sail to anywhere. We can learn a lot of stuff from sailing storyboats, like how to ride on elephants or how skunks got striped coats. We can meet a bunch of kids that we will be glad to know. And when the summer gets hot, we will sail in seas of snow. So, students, if you see this poem, right, and if you see the image given over here, right, you can make it out that this story is totally an illusion and imagination. Okay, it's an imaginative story, it's an imaginative poem. There is no real thing over here, it's just the creativity and imagination of a child's mind. ओके यहाँ पर पोएट ने अपना इमेजिनेशन या फिर बच्चे जो सोचते हैं उनका जो इमेजिनेशन होता है वो हमें दिखाया है. ठीक है, देयर इज़ नो सच थिंग. जैसे कि अगर आप पोएम का हेडिंग देखो, स्टोरी बोट, इफ़ यू सी द नेम ऑफ द पोएम, राइट, द नेम ऑफ द पोएम इट्सेल्फ इज़ अ नॉट रियलिस्टिक, है ना, ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है. स्टोरी बोट, बोट का मतलब क्या होता है? इट्स अ vehicle which is used in water, right? And story means kahani, है ना. तो how can these two words go together? So this is totally an imagination. Okay, it's an imagination of the poet's mind. So we are going to see it, and before moving ahead, I will just brief you up a little bit about the summary of this poem. Storyboard, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, the poet is saying that we all need to climb on the boat. यहाँ पे अगर आप ये फ़ोटो देखोगे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक बुक दिखाई हुई है. दिस माइट बी अ स्टोरी बुक, राइट. कौन सी बुक होगी ये? और इसी स्टोरी बुक को उन्होंने क्या बनाया हुआ है? दे हैव मेड इट इनटू अ बोट विच कैन राइड इन द वाटर. ओके, और उसके अंदर जब हम राइड करेंगे तो हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, ये सारी बातें पोएट ने यहाँ पर की है ना. जब भी हम स्टोरी बोट के अंदर बैठेंगे, राइट, तो हमको मैजिक सी के अक्रॉस जाना मिलेगा. नाउ मैजिक सी इज़ समथिंग विच इज़ नॉट ए रियलिटी. ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है. मैजिक सी नाम का कुछ होता नहीं है ना. सी इज़ देयर बट देर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड मैजिक सी. सो ऑब्वियसली जब बोट ही टोटली इमेजिनेटिव है ना, जो बोट है, स्टोरी बुक जो है उसको बोट बनाया गया है, तो जब वो ही इमेजिनेटिव है तो उनका सी भी कैसा होगा? इमेजिनेटिव. दैट इज़ टोटली इन द इमेजिनेशन. ओके, रियल कुछ भी नहीं है. वो कहते हैं कि दे कैन विज़िट जंगल्स, फिर बेयर्स के साथ अपना नोज़ रब कर सकते हो, कहीं पर भी सेल कर सकते हो, है ना. और स्टोरी बुक से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे कि एलिफेंट पर राइड कैसे किया जाता है, स्कंक्स जो एनिमल है उसको स्ट्राइप्ड, उसके बॉडी पर वो स्ट्राइप्ड कोट्स कैसे बने हैं,
है ना, और हम कुछ और बच्चों को मिल सकते हैं जिनको मिलकर हमें खुशी होगी, है ना. वी विल ऑल्सो बी ग्लैड एंड दे वुड ऑल्सो बी ग्लैड टू नो अस. एंड वेन द समर गेट्स हॉट दे वुड बी सेलिंग इन द सीज ऑफ स्नो. नाउ अगर स्नो गिरा हुआ है तो वहाँ पे सेल कैसे करेंगे, है ना. पानी में बोट सेल होती है. कैन यू सेल अ बोट ऑन द स्नो? वेल दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो पूरी पोएम यहाँ पे दी गई है वो पूरी की पूरी पोएम इमेजिनेशन है. ओके, नथिंग इज रियल. So now let's see the poem stanza wise and we will understand it along with the hard words. Okay students? Let's see the first stanza. It is time to read a story, so climb aboard with me and we can sail a story boat across a magic sea. So here the poet Bobby Katz is saying that it is time to read a स्टोरी. दैट मीन्स अभी क्या टाइम हुआ है, स्टोरी रीड करने का. और अगर आपने कभी रीड की होगी तो आपको मालूम होगा कि जब भी हम स्टोरी बुक रीड करते हैं तो हम पूरी तरह उस स्टोरी के अंदर चले जाते हैं, है ना. वैसे ही पोएट क्या कह रहे हैं कि अभी स्टोरी बुक रीड करने का टाइम आ गया है. सो क्लाइंब अबोर्ड विथ मी एंड वी कैन सेल अ स्टोरी बोट अक्रॉस अ मैजिक सी. So what is the poet saying? So climb aboard मतलब मेरे साथ चढ़ जाओ. बोर्ड, अबोर्ड करना मतलब किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना. अबोर्ड, राइट. अबोर्ड का मीनिंग टू क्लाइंब ऑन समथिंग. ठीक है, टू क्लाइंब ऑन समथिंग. सो द पोएट इज आस्किंग अस और आस्किंग यू टू क्लाइंब along with him on the boat. Okay, now here the book is changed into boat. ठीक है, ये जो बुक है, स्टोरी बुक जो है, उसे पोएट की इमेजिनेशन में उसने क्या बना दिया है, बोट बना दिया है. ओके, अकॉर्डिंग टू द पोएट द स्टोरी बुक, जो ये फॉर्मेशन होता है स्टोरी बुक का, है ना, ये बुक है. ठीक है, देयर आर पेजेस इन इट, राइट, एंड समथिंग इज रिटन ओवर हियर एंड देयर आर मेनी पिक्चर्स ऑन इट. But he has considered that story book as a story boat. ठीक है, और वो क्या कहता है कि हम उसके अंदर बैठ के सेल करेंगे across a magic sea. So in his imagination he has changed the story book into a story boat, right. और वो क्या कहता है कि उसमें हम साथ में मिलके मैजिक सी को क्रॉस करेंगे. ठीक है, we will move along the magic sea. In the second stanza, the poet says, we can visit jungles or rub noses with a bear. We can visit any place and sail to anywhere. Okay, so let's see the second stanza. We can visit jungles or rub noses with bear. We can visit any place and sail to anywhere. So here the poet says that while getting on the story boat, right, स्टोरी बुक के ऊपर चढ़ के जब वो क्रॉस करेंगे मैजिक सी को, राइट, तो बीच में जंगल्स आएंगे. दे कैन विजिट जंगल्स एंड इफ दे गो टू जंगल दे कैन सी मैनी डिफरेंट एनिमल्स, है ना. अगर वो जंगल में विजिट करने को मिलता है तो हमें बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे. और अगर शायद बेयर मिल जाता है देन वी कैन रब नोजेस विथ अ बेयर. Noses means it's a kind of act you can say to show a love to someone. Okay, जैसे कि आपका नोज़ है उसको किसी और के नोज़ से रब करना. जैसे कि अगर आप ये इमेज देखोगे, इफ़ यू सी द इमेज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दिस वन, सी द गर्ल इज ट्राइंग टू रब her nose with that of the bear. That's a kind of act which is showing the love and the fun the child is having, right. So they can do that, right, while sailing across the sea. And if they come across the jungles, right, तो उसमें अगर उनको कोई बेयर दिखता है तो वो नोज़ रब कर सकते हैं उनके साथ. And we can visit any place and sail to anywhere, right. We can visit any place, कोई भी प्लेस आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि ये जो बोट है
ये जो स्टोरी बोर्ड है, राइट, उसके अंदर जो भी स्टोरीज होती है, राइट, हम उस स्टोरी के जो कैरेक्टर्स है, वो जो सिचुएशन है, जो जगह है, जब हम उसको इमेजिन करते हैं तो हम खुद भी उस स्टोरी का एक पार्ट बन जाते हैं, राइट. वी फील दैट वी आर ऑल्सो इन दैट स्टोरी एंड वी एन्जॉय दैट स्टोरी इन द सेम वे, राइट. जैसे कि यहाँ पे ये जो स्टोरी बोर्ड की बात हो रही है, इट कुड बी पॉसिबल कि ये जो स्टोरी बुक है उसमें जंगल्स है, एनिमल्स है ना. इसीलिए जब पोएट बात कर रहे हैं स्टोरी के बारे में, स्टोरी बोट के बारे में, so he is talking about the jungle, right, and he says that we can visit any place and sail to anywhere. Okay, now let's see the third stanza. We can learn a lot of stuff from sailing storyboats, like how to ride on elephant or how skunks got striped coats. Now here we can learn a lot of stuff. Stuff का मतलब दिया हुआ है, stuff means things. You can learn many things from this sailing storyboard. Sailing storyboard मतलब यहाँ पर ये जो बुक दिखाई गई है, sorry, right, if you see this book which is acting like a boat, है ना, जो पानी में सेल कर रही है, तो जब हम उसके ऊपर सेल कर रहे हैं, राइट, व्हेन वी आर सेलिंग ऑन दैट स्टोरी बोट, वी आर गोइंग टू लर्न मैनी थिंग्स. वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट थिंग्स. जैसे कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्होंने, हाउ टू राइड ऑन एलिफेंट्स और हाउ स्कंक्स गॉट स्ट्राइप्ड कोट्स. एलिफेंट के ऊपर बैठ के कैसे राइड किया जाता है, ये भी हमें सीखने को मिलेगा, राइट, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट लॉस्ट इन दैट जंगल, राइट. जो जंगल स्टोरी बुक के अंदर होगा, है ना, उसी के अंदर हम लॉस्ट हो जाएंगे. लॉस्ट का मतलब खो जाना नहीं होता है, हम पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं वो स्टोरी के अंदर, राइट. सो वी कंसिडर कि हम लोग भी उसी जंगल में, वी आर ऑल्सो इन द सेम फॉरेस्ट एंड वी आर राइडिंग ऑन द एलिफेंट्स. एंड वी कैन ऑल्सो कम टू नो कि ये जो स्कंक्स है उनके ऊपर स्ट्राइप्स कैसे बने. स्कंक्स का मतलब क्या है, इफ़ यू सी ओवर हियर, it's a striped animal found in North and South America. ओके, उसको स्कंक्स कहते हैं. उसके ऊपर जो, जैसे ज़ीब्रा के ऊपर कैसे स्ट्राइप्स होते हैं, है ना, वैसे ही स्ट्राइप्स स्कंक्स के ऊपर होते हैं. तो वो सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेगी कि उनको कैसे स्ट्राइप्स मिले, एलिफेंट के ऊपर कैसे राइड किया जाता है, राइट. वी आर गोइंग टू लर्न दोज मैनी थिंग्स while sailing on a story boat. We can meet a bunch of kids that we will be glad to know. And right, when you are sailing on that storybook, what will happen? You would be meeting a bunch of kids. मतलब कुछ ग्रुप, जो बच्चों का जो ग्रुप होगा, राइट, 2-3 kids or 5-4 kids, we don't know how many, but yes, a bunch of kids का मतलब क्या होता है, एक छोटे से ग्रुप, बच्चों का छोटा सा जो ग्रुप है उनको हमें मिलने को मिलेगा. And we would be glad to know. Glad means we would be happy to know them, है ना, मतलब हमको उनसे मिलके अच्छा लगेगा और उनको भी हमें मिलके अच्छा लगेगा. And when the summer gets too hot, we will sail in the seas of snow. So when it would be summer time, right, जब समर टाइम होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो हम लोग अभी जो पानी में सेल कर रहे हैं, तो हम पानी में सेल नहीं करेंगे, हम किसके अंदर सेल करेंगे, वी आर गोइंग टू सेल इन द सीज ऑफ स्नो. दैट मीन्स अभी तक ये जो स्टोरी बोट है वो कहाँ पे सेल कर रही थी, मैजिक सी के अंदर, राइट, जो पानी था. अकॉर्डिंग टू द पोएट पहले तो पानी ही था सी के अंदर, लेकिन बाद में जब समर्स आ जाएगा तो वो क्या कहते हैं कि समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. सो वी आर नॉट गोइंग टू सेल ऑन द वाटर. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सेल इन द सीज ऑफ स्नो. स्नो मतलब बर्फ़, है ना. तो स्नो का जो सी होता है उसके ऊपर सेल करना वैसे तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये पूरा पोएम जो है वो एक इमेजिनेशन है, राइट. इट्स एन इमेजिनेशन ऑफ द पोएट एंड इट्स अ लवली इमेजिनेशन, राइट. जब बच्चे स्टोरीज़ पढ़ते हैं तब वो पूरी तरह उस स्टोरी के अंदर खो जाते हैं, है ना. वैसे ही पोएट कह रहा है कि जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें उसके अंदर पूरी तरह खो जाना चाहिए. So students, I hope that you understood this
पोएम नाइसली, राइट। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे लाइव क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी नाइसली एंड यू ऑल्सो एन्जॉयड द पोएम। ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज गिवन ओवर हियर। आपको यहाँ पे ये जो मीनिंग्स दिए हुए हैं वो आपको लिखने हैं नोटबुक में, ठीक है। यू हैव टू राइट द मीनिंग्स इन द notebook. Let's see, take the correct answer given over here. Here, climb aboard with me means get into a boat with me, read a story with me. Okay, so we have only two options. Climb aboard with me. What does it mean? Get into a boat with me or read a story with me. What do you think, students? What is the poet trying to say over here? Poet is trying to say that we need to read a story because ये imagination है, यहाँ पर actual boat नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी actual boat नहीं है। वो किस चीज़ के लिए बुला रहे हैं? स्टोरी रीड करने के लिए बुला रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स सी सेकेंड वन। योर सेल टू एनीवेयर सजेस्ट्स sail to any country or go anywhere through stories. Now, as you know that this is an imagination, right? And sail to anywhere. Now, जब आप एक imagination में कहीं पर बैठे हुए हो, right? और क्या कर रहे हो? स्टोरी रीड कर रहे हो, है ना। और वो स्टोरी जो रीड कर रहे हो वो स्टोरी में आप स्टोरी बोट में बैठ के घूम रहे हो, तो आप कहाँ जाओगे? कहाँ जा सकते हो? यू कैन गो एनीवेयर थ्रू स्टोरीज, है ना। कंट्रीज़ में सेल करना नहीं पॉसिबल है, वो तो रियलिटी हो जाएगा, और वो रियलिटी में तो वो चीज़ हो ही नहीं रही है ना। पोएट इज़ आस्किंग अस टू इमेजिन दैट वी आर सिटिंग इन अ बोट, राइट। जो स्टोरी बोट है वो, और उस स्टोरी के अंदर हम कहीं पर भी घूम सकते हैं, ठीक है। The poet suggests that we can learn a lot of stuff from sailing a storyboat. We can learn a lot from stories, or boat journeys can teach us a lot. What is the fourth question, students? In the poem, when the summer gets too hot, we will sail in the seas of snow. Means that we can escape from summer by sailing to cold climates. Or when things are uncomfortable, we can lose ourselves in an imaginary world through storybooks. So here, students, what is he trying to say? Now, when you are staying somewhere जहाँ के summers बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसके अंदर, है ना, बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, तो आप क्या करोगे? Are you going to just leave your home to 5 months? Now, if you have money, you can afford that. है ना, आपका घर यहाँ पर है जहाँ पे गर्मी, कहीं पर भाग नहीं जा सकते हो, है ना। You cannot escape to cold climates because summers तो every year आता है. Sail through the seas of snow. Now, वैसे snow सकते हैं हम लोग, है ना, हम अपनी बोट वहाँ पर सेल। लिए पोएट यहाँ पर क्या समझाना चाहते हो? That whenever happy, then what you can do? You can just read the storybooks and you can go into that imaginary world and you can make yourself happy. Okay, so that is what the poet is trying to say. So fourth वाले में कौन सा ऑप्शन सही आएगा? बी आएगा, ठीक है। So students, I hope कि आपको ये वाली एक्सरसाइज क्लियर हो गई है. Now if you see this question number B, which is your favorite storybook? Why is it your favorite? Discuss in class. Now here you have to do this as a homework. ठीक है, कहाँ पर लिखोगे आप? आपकी नोटबुक में. You have to write it down in your notebook after writing meanings. क्या है क्वेश्चन? What is it called and who is the author? That means you have to write the name of your favorite book. आपकी जो भी फेवरेट बुक है, आपको जो भी स्टोरी बुक अच्छी लगती है, आप उसका नाम लिखोगे कि द नेम ऑफ माई फेवरेट स्टोरी बुक इज़, राइट, वॉट एवर इट इज़. एंड हु इज़ द ऑथर? वो स्टोरी किसने लिखी है? ऑथर का मतलब क्या होता है? द वन हु राइट्स स्टोरी इज़ कॉल्ड ऑथर. सो यू नीड टू राइट डाउन
कि ये स्टोरी का नाम क्या है और उसका ऑथर कौन है। डज इट टेल यू अबाउट न्यू पीपल एंड प्लेसेस, कि आपकी जो स्टोरी है वो या फिर प्लेसेस के बारे में है, एनिमल्स के। वो ये लिखना है कि आपने जो पोएम रीड की है या फिर जो भी आपकी स्टोरी है, बुक पढ़ी है, राइट, उसकी स्टोरी कैसी है। कॉमेडी, इज इट मैजिकल, राइट, जैसे कि हमने पोएम जो हमने पढ़ा वो मैंने आपको बताया था, राइट, नथिंग इज़ रियल, तो वैसे ही किसी मैजिक लिखने को मिलता है, वैसी स्टोरीज़ है ना, तो वो आपको लिखना है। सो कर दिया है कि आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर्स कैसे देने हैं। सो यू कैन राइट इट पॉइंट वाइज, जैसे कि पहला वाला पॉइंट ऐसे स्टार बना के जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फिर दूसरा क्वेश्चन है उसका दूसरा पॉइंट, और तीसरा क्वेश्चन है उसका तीसरा पॉइंट, ठीक है। यू कैन राइट इट इन दैट वे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी एंड डी इज़ नॉट नीडेड टू बी डन because you are not in the school, so we won't be able to conduct exercise C, and D we are not doing it. So in this poem we are going to do exercise A and B and meanings. exercise A टिक द करेक्ट आंसर है, वो टेक्स्ट बुक में ही रखने हैं, और एक्सरसाइज B ये जो फेवरेट स्टोरी बुक है उसका आंसर आपको आपकी नोटबुक में लिखना है आफ्टर राइटिंग डाउन द मीनिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, प्लीज़ लेट मी नो इन द लाइव क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।